This is Dr. Acha, theek hai, aaiye. Oops. Then I don't think I need this mic. And he has been representing our case on the NOTA with the Election Commission. We have filed a petition with the Chief Election Commissioner on NOTA. Reason is that all over the world, the objective of democracy is to get good leaders into the parliament, to avoid undesirable people, and especially in India, where people say that there is criminalization of politics. That is why about 15 years ago, I filed a petition in the Supreme Court on NOTA. And a decision was given by the court, and that is why NOTA has become part of the ballot paper or the EVM. But today, the way NOTA is, we are one of the largest democracy in the world, but question is, are we a good democracy anywhere? And the people, many countries have right to recall. Recall always happens after the event. Damage is done, now you recall. So what we have filed was right to reject. And the dilemma that people are facing today is that if they go to vote, who do they vote for if all candidates are undesirable or criminal, or for whatever reason they are not the right candidates in the national interest? So they have a choice only to two. One is to pick the most or the least undesirable candidate out of the two. So you are choosing out of the least evil. Or abstain, not to vote. Or even go to vote and pick NOTA. Even if they do pick NOTA, nothing happens. It is absolutely toothless. Therefore, if they do go to vote and make the least desirable candidate win, now the question is, that person won. Fair and square. Question comes, did you want him to win? 2, does he represent you? 3, is he in the national interest the best person to serve the country? Answer is none of the above. Now the other option that they have is to abstain from voting, and if they do not go to vote, they're not a good citizen. So either ways, this is the dilemma people are facing, and the average voting in the country is about 50%. So what we have requested now in the latest petition with the Election Commission is that we should empower the citizens of this country. Today, if they don't go to vote, that is called passive protest. They're protesting against these candidates, but in a passive manner. So we're saying give a right for active protest. So they go in, and NOTA should be treated as a candidate. NOTA is a candidate. And if NOTA gets the highest number of votes, then means the majority people have rejected all of them. People have rejected those candidates. This is democracy. That means if NOTA wins, then all candidates from that constituency for that one election only and for one upcoming election should be disqualified. Only from that one constituency. Now, they have a right to stand up to get votes, and the people have the right to reject them, and they reject it. So hence, they should be disqualified. Now, what will be the advantage of doing it? It will open the doors for good candidates to walk in. There can never be a vacuum. Always, automatically, good people will come into the political system, even as independents for that matter. And number 2, it will also force the political parties today to field good candidates, because when they know that people can actually reject the criminal element, they will have no choice but to field good candidates, and if good candidates are fielded, they have a better chance of winning. So it will push all the political parties to straighten up and bring clean candidates if they want to win, otherwise they will be kicked out. Because today, people vote for both criminals. You look at UP election, you look at Tamil Nadu election. For the last 20 years, Mayawati Mulayam, Mayawati Mulayam, Mayawati Mulayam, and their Anna Amma, Anna Amma, Anna Amma. What is it?
You see, people never voted for a party or a candidate to come in. They were so fed up of these people and the criminalization of everything that they wanted to kick them out, but they didn't want to have them in. But they got them in. By default, is this democracy? This is terror. Hear the words. This is terrorizing the citizens of your country. This is literally terrorizing the citizens of this country. So this is a mockery of democracy. This is not a good democracy. This is disgraceful. So the whole objective of NOTA is that we must empower our citizens to actively protest and bring good candidates into our leadership system, and this ought to become the law if we want to see a united India on the world map. I repeat, if we want to see united India on the world map in 15 years from now or 10 years from now, the way we are heading is disaster. But if we want to see a united India, we've got to bring good people into our leadership who put the country's interest above their own, and they have no choice but to serve the country. And to do that, we must make NOTA a law in this country. With those words, I will just stop right here and I'll open it for questions. I'm sorry, sir. 15 साल पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी और उसके बेसिस आधार के ऊपर हमारे को नोटा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था और बैलेट पेपर के ऊपर नोटा छपता है। तो आज की तारीख में अगर लोग, सबसे बड़ी दुविधा ये हो पड़ चुकी है कि कोई इंसान जाता है वोट करने के लिए तो उसको बहुत परेशानी ये है कि सभी कैंडिडेट्स अच्छे नहीं है, कोई क्रिमिनल है, कोई फलाना है, दे आर नॉट गुड कैंडिडेट्स। तो अब को समस्या है कि साहब किसको जाके वोट करें, तो सबसे घटिया जो क्रिमिनल होता है उसी को जिता देता है साहब। अब सवाल यह है, उसको जिता दिया उसने, क्या उसकी वो चॉइस थी? क्या वो कैंडिडेट इसको रिप्रेजेंट करता है? क्या देश के हित में सबसे अच्छा कैंडिडेट वही था? आंसर इज नो। अगर ये हाल है और दूसरी चॉइस उसके पास क्या है कि वोट करने नहीं जाए, एब्सटेन करे वोट करने से, और अगर वोट करने नहीं जाता तो दुनिया कहती है साहब आप तो अच्छे नागरिक नहीं हो, आपने वोट ही नहीं किया, और जाके उसको जिता देता है तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं, आप ही ने तो जिताया था उसको, आप ही ने जिताया था। तो ये समस्या आ गई है आज इस देश के अंदर। इसी वजह से अब तकरीबन हर एक पार्टी में यही हाल है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, एक पार्टी से क्रिमिनल निकलता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरी से निकलता है, वापस इधर आ जाता है, इधर से जाता है, फिर उधर जाता है। सेम पीपल आर चर्निंग इनटू वन पार्टी इनटू द अदर। यू डोंट सी अ न्यू फेस। आपके पास अच्छे लोग हैं कहां पर, दिखते कहां हैं? आज लोग कहते हैं कि आपको हु इज द बेस्ट कैंडिडेट? आई वुड से नन ऑफ द अबव। आई वुड से नन ऑफ द अबव। अगर ऐसा हाल नन ऑफ द अबव हो जाता है तो सर यू हैव नो चॉइस। ये देश को कोई सुधरने से रोक नहीं सकता। अच्छे कैंडिडेट आएंगे ही आएंगे उसके अंदर, कैसे नहीं आएंगे साहब? और पॉलिटिकल पार्टीज विल बी फोर्स्ड टू फील गुड कैंडिडेट्स। तो आज इसी को हम लोग को एक सार्थिक रूप से इसको असलियत लाना चाहते हैं। और अगर ये हम लोग को डेमोक्रेसी बचानी है तो वी मस्ट मेक नोटा इनटू अ लॉ। एक कानून इसका बनना चाहिए। इसी आधार पर डॉक्टर हर्ष पाठक भी यहां पे हैं। कोई आप सवाल? साहब देश की राजनीति अगर सही होती तो नोटा हम फाइल नहीं करते, नोटे की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से देशों में राइट टू रिकॉल होता है साहब, रिकॉल होता है। रिकॉल होता है आफ्टर द इवेंट, डैमेज होने के बाद आप रिकॉल करेंगे आपको। इसका मतलब है मरने के बाद दवाई दीजिए उसको। अरे मरने के बाद दवाई देने का क्या फायदा? हम कह रहे हैं रिकॉल छोड़िए, आप रिजेक्ट कीजिए, आप उसको इलेक्ट ही मत कीजिए। आप अगर आपको मालूम है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने दिख रहा है, 20-20, 30-30, 40 मर्डर्स, रेप्स उनके ऊपर हुए, लगे हुए चार्जेस, मर्डर्स एंड रेप्स, बट फिर भी वो जीत जाते हैं साहब, क्योंकि कहते हैं कन्विक्ट थोड़ी हुआ है, ही इज नॉट कन्विक्टेड। व्हाट अ जोक। तो नहीं भी हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको मालूम है साहब, दुनिया में हर चीज का लोगों को मालूम होता है लेकिन सबूत नहीं दिखता, इसलिए सारे क्रिमिनल भी छूट जाते हैं और यहां तो सबूत भी मिटा दिए जाते हैं। तो आपने जो बात कही है साहब बिल्कुल सही है। बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू ब्रिंग इट इनटू अ लॉ।
और जब तक अच्छे कैंडिडेट नहीं आएंगे साहब, आप ही बताइए कि हम लोग का भविष्य क्या है साहब। हम ही में से निकलेंगे। और इसके लिए लोग सब शिकायत करते हैं, हमारी गलती नहीं है, सिस्टम खराब है, हमारी गलती नहीं है, सिस्टम खराब। कोई साहब जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। जानते हैं सब गड़बड़ होती है, कहते हैं आपकी गलती नहीं, आपकी गलती नहीं, सिस्टम खराब है। अरे सिस्टम बनाया किसने है? सिस्टम बनाया किसने है? और दूसरी बात, हम सिस्टम सुधारने की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं ये नोटा की, ये सब हम सिस्टम सुधारने की बात कर रहे हैं। और यही से एक रास्ता निकलेगा कि अच्छे लोग आएंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। दैट्स ऑल। है जी, एक पिटीशन खेरा साहब की तरफ से उन्होंने फाइल की थी, कुछ और पिटीशंस भी कोर्ट में आई, फिर आप लोगों को उसको पूरा विषय जानकारी में है, नोटा का विषय सामने आया, ना बैलेट कास्ट करने की मशीन पे ले। I think you will be in a better position to ask what exactly we are talking about. We are not here exclusively for muscle, we are not here for criminal, we are not here. We are here to complete a process which is बैठे हुए एक भाई ने पूछा था कि नोटा लोग देने जाते हैं उसका क्या होगा। बस इसी जगह द अबव का ऑप्शन आने से क्या हुआ, पहले वोटिंग परसेंटेज होता था 30, 35, 40, 42। आज लोग जाते हैं और जो नहीं जाते थे उनकी तरफ से कोई जाकर कास्ट कराते हैं। तो पहली बात आप बचाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस करप्ट हो रहा था कि आप नहीं जाते थे, आपकी जगह किसी के वोट पड़ जाते थे, तो वो बच गए। पहली दिल भी करता है फिर रुक भी जाते हैं, दिल भी करता है रुक जाते हैं। तो सब पार्टियां से, तो कई पार्टियों से फीलर आए हैं, हमारे को कईयों से आए हैं, ऐसी बात नहीं। सर आपका क्या सवाल है सर? जी वर्मा जी। जी सर। हम लोग गए एक हफ्ते पहले एक जो एक प्रक्रिया होती है वहाँ पे मुख्य चुनाव आयोग से मिलने की, उसका पालन करते हुए उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उनके सामने अपनी बात भी रखी गई, जिसपे कि उनका बहुत सकारात्मक बात थी। और क्योंकि जो बात कही गई है वो बहुत लॉजिकल है कि एक प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसका कल्मिनेशन क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसलिए उस प्रक्रिया को उन्होंने समझा है। और उन्होंने कहा है कि इस विषय पे निश्चित रूप से आगे जो है वो समन्वय किया जाएगा दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस उनके साथ में, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे इस पे किया जाएगा। साथ ही साथ हमने जो बात कही है ये बात लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी है, तो लॉ कमीशन रिपोर्ट को भी उसमें रेफर किया जाएगा। तो एक तरह से एक एक्शन आइटम की लिस्ट में कम से कम ये विषय आ गया। और जो हमारा मुख्य मुद्दा था, जिस खेरा साहब से जब शुरुआत में बात हुई तो उनका मुख्य मुद्दा ये था, देखिए प्रक्रिया कानून इसके लिए एक संस्था है जिसपे हमारा पूर्ण विश्वास है, जो एक नागरिक की तरह से कंसर्न होने के बाद वो किसी विषय को सामने ला सकते हैं, सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं, बहस का विषय कर सकते हैं कि कम से कम उस विषय पे चर्चा हो और कुछ ना कुछ उसका निष्कर्ष निकले। इस विषय को उनके सामने रखा गया, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के बहुत सारे आदेशों में, निर्देशों में भी था, और चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने भी और उनके जो स्टाफ है उन्होंने भी इसको सकारात्मक रूप से किया। सुनील अरोड़ा जी से हमारी मुलाकात